Hello students, now we are going to discuss 23rd January shift 2 question paper, and before we get into discussion, let's just quickly see the section wise breakup. Here calculus we have 8 questions, algebra 9, coordinate vector 3D trigo put together 8 questions, more or less it is the same. One question from here, there, that's it. Okay, and if you look at almost all the chapters from calculus are covered. ITF it is missing, sets missing. IIDI put together 2 questions, normally it remains the same. Determined matrices 2 questions. PNC and probability combinedly we get 2 questions in almost all the shifts, you can see that. But here probability is missing, only PNC, there are 2 questions. And vector 3D put together, normally 3 questions that we get, 2 to 3 questions here, this is how it is. And in bracket I have written PYQ based questions, that number also if you look at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, more or less again it is the same. And apart from it, there are 2 questions which are relatively lengthier, okay, you can term them as lengthy, and rest all the questions are direct. What I mean by it is level 1, that means from any source that you might have practiced during your preparation time, you must have done similar questions. There is nothing new in this paper, everything you might have done earlier. So let's just go through the question paper, you will get better idea. First question, the length of the chord of the ellipse whose midpoint is given. बेटा कितनी बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं. You might have done even before doing PYQs, and in PYQs also in so many occasions we have come across such questions, right? Sometimes on parabola, sometimes on hyperbola, and here it is on ellipse. Okay. So length of chord whose midpoint is given. First of all, let's just write down equation of the chord. Given the midpoint, that is t is equal to s1, and t is x square is x1, y square is y1 minus 1, and s1 in place of x we will put 1 and in place of y as 1 by 2. So this is 1 by 4, 1 by 2 square upon 2, 1 by 8 minus 1. So x plus y, I am going to multiply both sides by 4, so we will get here 4 we are multiplying with, so 1 plus 1 by 2, 3 by 2, perfect. Now our requirement is on this ellipse, this line is there, the length of the chord that we require. So one way is you can solve for the points of intersection and take distance between them, that we will never like to do. Instead, length of the chord, direct formula we remember for any conic, that is square root of 1 plus m square, m is slope of this line which is minus 1, square of it is 1, and mod of x2 minus x1. x1 and x2 are the x coordinates of these 2 points. That also we are not going to solve, rather we know we can write this as x1 plus x2 whole square minus 4 x1 x2. Now all what we are required to do is, I am writing this as root 2. Okay, we are going to solve a quadratic equation by substituting y. We'll take y from here and put it in this equation, generate a quadratic equation in terms of x, and from there sum of roots and product of roots, that's it. Complete करते हैं. Y is this, let's put it here, x square by 4, 3 by 2 minus x whole square by 2 is equal to 1. So x square 3 minus 2x whole square, here 2 square 4 by 2, 8. Okay, so I'm going to multiply both sides by 8. So here 8 will get cancelled and here it is 8. So इस प्रोसेस में हमने सारे फ्रैक्शंस को क्लियर ऑफ कर दिया है. ठीक है, सो इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे तो 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बेटा, यहाँ पे माइनस 2ab, एक ये, एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म इज 9, सो इट इज, नाउ सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली लिखेंगे, दैट इज माइनस b by a 4, and product of roots 1 by 6, so it is, this is 2 by 3, square root of it beta, 12 minus 2, that is 10, and 2 inside, so 20 by 3 square root. Now check the options beta. In all the options we have 3 in the denominator. This cannot match because here there is no denominator present, so this is ruled out. We want 3, we have root 3. So all what we will do is, we are going to multiply. So this is square root of 60
right. Now let's just check. We have 1 by 3 root 15, that does not match. So if we want to write it in terms of root 15, this is 2 times of root 15. Now here. Perfect. Next. It says a spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it. When the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per minute. That means rate of change in volume of the ice cream. And the thickness of the ice cream layer decreases at the rate of this. The surface area of the chocolate ball without the ice cream layer is, okay. So situation is something like, we have a ball, we do not know its radius, but it will not change, it is a constant. Around it there is ice cream layer. Let's take its thickness to be x. Then a rate of change in volume is being given. So volume of the ice cream will be volume of the outer sphere minus volume of the inner sphere. So outer sphere will have radius as r plus x. So 4 by 3 pi r plus x or x plus r minus, perfect. अब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम यहीं से ले लेते हैं, आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी वो कर सकते हैं. हियर 3 x प्लस आर होल स्क्वेयर dx बाई dt. परफेक्ट. अब r को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है. इट सेज व्हेन ice cream layer thickness is 1, that means when x is 1, this is 1. dx by dt is this is 1 by 4 pi, so this cancels this 4 pi, done. dv by dt is 81, so 81 is equal to 1 plus r whole square. r plus 1 is equal to plus minus 9, r plus 1 negative तो नहीं हो सकता, so clearly value of r is 8. Then it says surface area of the ball, which is 4 pi r square. 4 pi, this is 64 over. Answer is, ठीक है. Next बेटा. The area of the region formed by x comma y satisfying x is minus 1 to 1, y is this, okay. तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करके इसी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक. a is greater than 0, so if x is greater than or equal to 0, then y is equal to, इक्वलिटी का ग्राफ ले रहे हैं, उसके बाद विल ग्राफ द इनइक्वालिटी, ठीक. सो e पावर माइनस x, एंड व्हेन x is less than 0, then it is y is equal to a plus e power minus x minus e power minus x, they cancel each other, it is a constant and that way positive constant, ठीक. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए y डैश को चेक करते हैं, which is clearly is always greater than or equal to 2, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ इस पोर्शन पे राइजिंग ग्राफ होगा, अपवर्ड मूविंग ग्राफ होगा, ठीक है. अब हम इमीडिएटली एक रफ स्केचेस का तैयार करते हैं. हमें वर्क करना है x -1 से 1 तक में, तो -1 से 0 तक में y is a constant and that constant is a. So this is y is equal to a -1 से लेके 0 तक में, एंड पॉजिटिव साइड में अपवर्ड मूविंग है, एंड x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, ये कैंसिल होता है, तो यहीं से ये अपवर्ड मूवमेंट बिगिन करता है, एंड हमें 1 तक लेना है. सो इट इज समथिंग लाइक, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y शुड बी लेसर, मतलब नीचे रहना है, एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अबव रहना है. सो एरिया दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड इज दिस, ठीक. तो बच्चा ये पर्टिकुलर एरिया के लिए तो हमें इंटीग्रेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हम लिख लेते हैं स्ट्रेट अवे लेंथ इनटू द ब्रेड्थ, तो ये आ गया a स्क्वायर यूनिट. और इसको फाइंड करने के लिए सिंपल इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इट इज ax प्लस e पावर x प्लस e पावर माइनस x, लिमिट है 0 to 1, विच इज a, दिस इज e -1 एंड e पावर -1 परफेक्ट. इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वी गेट 2a प्लस e पावर -1 -2, एंड क्वेश्चन सेज कि ये जो एरिया है वो ये है, ओके. सो दिस इज, अगर हम e से डिवाइड ही कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो वी हैव e देन 8
प्लस 1/e मतलब e पावर -1, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को तो हम कर देते हैं स्ट्रेट अवे कैंसिल। सो 2a - 2 इज 8, 2a इज 10, a वैल्यू इज, ठीक, डायरेक्ट है ना बेटा। नेक्स्ट, it says a rod of length 8 units moves such that its ends A and B always lie on the lines thus and thus respectively. If the locus of the point P that divides the rod AB internally in the ratio of this is this, then बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कई बार कर चुके हैं। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे दो रैंडम लाइन गिवन है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्स एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं। करने का तरीके में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इट्स द सेम वे। क्या करेंगे, इस लाइन पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को h लेते हैं या x1 ही ले लेते हैं तो y विल बी x1 + 2। लिस्ट नंबर ऑफ अननोन को इंट्रोड्यूस करना है। ये पॉइंट है हमारे लिए a एंड देन सेकेंड पॉइंट इस पे हमें लेना है, दैट इज x2, -2। इट सेज AB को इंटरनली डिवाइड करता हुआ किस रेशियो में, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता हुआ पॉइंट, उसका हमें लोकस चाहिए। सो लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट टू बी h, k। तो हमारे लिए h इज इक्वल टू x1 + 2x2/3। सो 3h इज x1 + 2x2। उसी तरह से 3k इज x1 + 2 -4। ठीक, तो यहाँ से तो हमें x1 मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ h एंड k, क्योंकि हमें पूरे सिचुएशन में सिर्फ h एंड k को इन्वॉल्व करना है। तो x1 एंड x2 दोनों की वैल्यूज हमें इन टर्म्स ऑफ h एंड k ही चाहिए। सो लेट्स जस्ट राइट x1 फ्रॉम हियर दैट वी गेट, दैट इज 3k + 2। यहाँ पे पुट कर देते हैं x1, तो 2x2 इज इक्वल टू 3h - 3k - 2। x2 का भी वैल्यू हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स, कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से हमें सिर्फ x1 एंड x2 का ही वैल्यू मिला है इन टर्म्स ऑफ h एंड k। अब x1 एंड x2 को एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमें जरूर देगा। हियर द लेंथ इज 8 यूनिट्स। लेंथ इसका मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, दैट इज AB। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्वेश्चन ने कहा 8 यूनिट्स है, एंड दैट इज x1 - x2 होल स्क्वायर, x1 + 4 होल स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 8। तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, परफेक्ट। अब x1 एंड x2 के वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज 3k + 2 माइनस 3h - 3k - 2 होल x1 3k + 2 + 4 इज इक्वल टू 64। यही है वो लोकस, बस इसे हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ठीक, अब हम h को x, k को y कंसिडर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिफोर दैट यहाँ पे फ्रैक्शन का प्रेजेंस है ना, तो इसे सबसे पहले हम क्लियर ऑफ कर देंगे। फॉर दैट लेट्स टेक LCM। सो ये है 6y + 4 - 3x प्लस हो जाएगा ये 3y + 2 का होल स्क्वायर बाई 4। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4, ध्यान रखना है। 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं साथ में। सो वी हैव 3y का स्क्वायर 9y² एंड देन स्क्वायर ऑफ इट 2a into b, so that is 36k, k is y is equal to 4 into 64। सारा काम हो चुका है, बस इसी को सिंप्लीफाई करके कंपेयर करना है। सो लेट्स कंप्लीट इट। ये है -3x 9y and 6, so -3x 9y + 6 का whole square। Here 4 times of 9y² 36y + 36 and on the other side 4 into 64। सारे ब्रैकेट अब हम ओपन करेंगे। So here 9x² 81y² 36 to this into this, which is 54x into y, 2 times of this into this, जो कि 108y, and then 2 times of this into this, which is -36x, here 36y², और ये आ जाएगा 144y
144 इज इक्वल टू, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 256. परफेक्ट. अब सभी टर्म्स को हम एक तरफ लाएंगे और बस कंपेयर करते हुए इसे कंप्लीट करना है. वी आर शिफ्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स दिस साइड. सो 9x स्क्वायर, अगर आप देखें तो वी हैव प्रेजेंस ऑफ 9x स्क्वायर. उसके बाद y स्क्वायर वाले टर्म्स को हम एक साथ कर देते हैं, यहाँ है और यहाँ पे है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं. वैसे भी क्वेश्चन कह रहा है कि 9 को आप कॉमन ले लें, तो कॉमन लेते हुए लिखते हैं x स्क्वायर हो गया. एंड देन यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया तो 4 है, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 9 है. सो दैट कम्स आउट टू बी 13y स्क्वायर. एंड देन वी वांट xy वाला टर्म. xy टर्म वी हैव हियर, दैट्स इट. पूरे में सिर्फ इसी जगह पे है. तो अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं बेटा, वी आर लेफ्ट विथ 6 टाइम्स ऑफ xy. देन वी वांट x वाला टर्म. सो x इस पूरे में अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला है. 9 हमने कॉमन ले लिया, 4x. एंड देन वी वांट y containing term. y presence we have here and here. एंड वी आर टेकिंग 9 कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 12 और यहाँ 16 है ना. तो 16 प्लस 12 अगर हम करें 28y. एंड कांस्टेंट टर्म हमें बाहर ही रखना है, ठीक है. सो प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म वी हैव 36, वी हैव 144. ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 180. परफेक्ट. सब्ट्रैक्ट करते हैं, 180 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -76 दैट वी आर लेफ्ट विथ. एग्जैक्टली द सेम थिंग. अब बता दें अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट विच इज 13 माइनस बीटा. बीटा इज एक्स वाई कोएफिशिएंट विच इज -6, माइनस ऑफ -6. एंड देन गामा दैट इज एक्स कोएफिशिएंट माइनस ऑफ -4 प्लस 4. तो बचा ये है 10, 13 इट इज. ठीक है. थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व है इन द सेंस ये वाले सिंप्लीफिकेशन में, दैट्स इट. अदरवाइज क्वेश्चन वैसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं करना आता है. ठीक है. नेक्स्ट, मैट्रिसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ही हमें क्वेश्चन मिल जाता है इस पे और एडजॉइंट पे, है ना. तो आंसर करने का तरीका, इससे इट हैज़ नो सोल्यूशन, तो x को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. सो लेट्स डू इट एज 1 2 3. 2 -1 करते हैं एंड 3. दो अननोन, दो इक्वेशन हम फ्रेम कर लेंगे. सो इट इज y प्लस 4z इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमें मिलेगा 4y प्लस माइनस हियर 1 z इज इक्वल टू राइट. अगर हम नो सोल्यूशन चाहते हैं तो ये जो दो वेरिएबल में हमारे पास सिस्टम क्रिएट हुआ है उसके पास भी नो सोल्यूशन होना चाहिए. और वो कब होगा? जब 1/4 इज इक्वल टू 4/λ माइनस 1 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू. करेक्ट. तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू का पता चल जाएगा विच इज लैम्डा इज 17 एंड इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो म्यू -6 इज नॉट इक्वल टू 12, दिस इज नॉट इक्वल टू 18. करेक्ट. अब ऑप्शंस को चेक करें. वी वांट लैम्डा टू बी 17 बट इट शुडंट बी. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, it says let the shortest distance from a comma 0 where a is greater than 0 to the parabola y square is equal to 4x be 4. Then the equation of the circle passing through the point a comma 0 and focus of the parabola and having a center on the axis of the parabola. वैसे नॉर्मल वाला जो सेक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ आप डेरिवेटिव को यूज करके तो आंसर कर ही सकते हैं. लेकिन जिसने भी नॉर्मल में मैंने जो वीडियो बनाया था उसे कवर किया हुआ है, तो ये स्पेसिफिक केस हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी पैराबोला, एंड मैं नॉर्मल का डिस्कशन क्यों करना चाह रही हूँ यहाँ पे, रीजन बीइंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द नॉर्मल डिस्टेंस. ठीक है. तो सबसे पहले उसके हेल्प से हम डायरेक्टली आंसर तक कैसे पहुंचेंगे वो मैं बता देती हूँ. उसके बाद विल कम ओवर टू assuming we have never studied normal, then how do we answer to this question. ठीक है. तो सबसे पहले तो देखो, जैसे कोई भी पैराबोला है तो उसके एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, लेट्स टेक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. ठीक है. 2a, 0 ये पॉइंट है. मैं अगर
2a के लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट लेती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 2a के लेफ्ट में ऑन द एक्सिस, ओके, देन इन दैट केस इन सभी पॉइंट से एक ही नॉर्मल की पॉसिबिलिटी होती है, एंड दैट इज द एक्सिस इटसेल्फ, दैट इज दिस, ये नॉर्मल है ना, एक्सिस इज अ नॉर्मल फॉर द कर्व, तो एक ही नॉर्मल की पॉसिबिलिटी होती है और वो एक्सिस ही होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द पैराबोला, तो आपने स्ट्रेट अवे बस वर्टेक्स से ये डिस्टेंस ले लेना है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 2a के राइट में जाते हैं ना, तो 3 नॉर्मल होती हैं, एक इस तरफ, और ये दोनों तो लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ है, दोनों इक्वल लेंथ के ही होते हैं, और ये थर्ड नॉर्मल होती है, 3 नॉर्मल्स आर देयर, ठीक। और इन तीनों में ये और ये तो इक्वल लेंथ के होते हैं, और यही शॉर्टेस्ट होता है, ये डिस्टेंस लार्जर आता है कंपेयर टू दिस, ठीक। तो हमें डायरेक्टली बस इसका बताना होता है कि ये लेंथ कितना है, फाइन। जब कभी भी आपको एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए ना, पैराबोला के एक्सिस पे ही पॉइंट है, वहां से पैराबोला तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। और उसके लिए इसका पैरामीटर भी मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, t इज इक्वल टू प्लस माइनस आता है, तो प्लस वाला आप ये ले लें, दैट इज k, ये पॉइंट k, 0 है, तो k माइनस 2a अपॉन a स्ट्रेट अवे, ओके। इससे हमें t का पता चल जाएगा, मतलब पैरामीटर का पता चल जाएगा। उसके बाद 80² 280 आप ले ले, पॉइंट आ गया, डिस्टेंस कंसिडर कर लें, दैट्स इट, ठीक है। अब विदाउट यूजिंग दिस डायरेक्ट रिजल्ट आंसर करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे, लुक एट, आप इस पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे विच इज 80² 280, a फॉर द पैराबोला इज 1, तो t², ठीक। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, t² माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4t², डन। इसका स्क्वायर रूट, तो एक काम करते हैं, हम स्क्वायर को ही मिनिमाइज करेंगे एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका स्क्वायर रूट मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, हम इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी निकालेंगे और इसका मिनिमम का स्क्वायर लेंगे तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, परफेक्ट। लेट्स जस्ट प्रोसीड नाउ, f डैश इट इज 2 times of t² minus a into 2t and this is 8t, ठीक। we want when is it 0, फाइन। तो सॉल्व कर लेते हैं, t इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इट स्ट्रेट अवे, ठीक, क्योंकि अगर हम 40 कॉमन लेते हैं तो t² माइनस a, 40 हमने कॉमन लिया है तो ये है, तो यहाँ से हमें जो सोल्यूशंस मिल रहे हैं वह है ये, और यहाँ से t² इज इक्वल टू a माइनस 2, और ये हमें सोल्यूशन तभी देगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 2। अगर a इक्वल टू 2 होगा तो सोल्यूशन यही वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर a लेसर देन 2 है, इन दैट केस t इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, और अगर a ग्रेटर देन 2 है, इन दैट केस t इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस 2 आर 2 मोर सोल्यूशंस, ठीक है। अगर ये वाला सिचुएशन है देन इन दैट केस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 पे ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर t इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट करके देखें तो हमें मिल रहा है a², ये 0, राइट, एंड a लेसर देन 2 है, तो a² लेसर देन 4 होगा, राइट। ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, राइट। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर लेसर देन 4 है, तो डिस्टेंस लेसर देन 2 है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 चाहिए, तो क्लियर हो जाता है ए जो कुछ भी इन्वॉल्व है दैट इज ऑफ द काइंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब ग्रेटर देन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ये है ना बेटा, ए ग्रेटर देन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये जो 2 t हमारे लिए है प्लस माइनस, यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे ना t एज सम वैल्यू एंड देन t एज नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, तो ये जो 2 पॉइंट हमें मिलेंगे वो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होंगे, तो उनका डिस्टेंस जब आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस से लेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, तो आपको दोनों कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बस एक ले लो। तो t इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लेंगे, दोनों में जो छोटा होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, व्हाट डू वी गेट, a², राइट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को ही कंपेयर कर लेते हैं, और अगर हम ये पुट करते हैं यहाँ पे तो t² इज a माइनस 2, a माइनस 2 माइनस a, तो माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड ये है 4t², t² विल बी a माइनस 2, सो इट इज 4a माइनस 8, जो कि है 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1, डन। बच्चा अब ध्यान से समझना, ये a² है, ये 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 है, दोनों में लार्जर कौन होगा, वेयर a इज ग्रेटर देन 2। बहुत स्मार्टली आप इसे हैंडल कर सकते हैं कि दोनों में लार्जर कौन सा है, उसके लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, अगर पॉजिटिव आ रहा है
तो द वन विच वी आर राइटिंग फर्स्ट विल बी लार्जर, नेगेटिव आ रहा है तो दिस विल बी स्मॉलर, राइट। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड ए का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट। ये ग्रेटर देन 0 है मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये हुआ। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिला है, राइट। तो अब जो हमने फाइंड किया है डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको आप इक्वेट कर दें, ये 4 है ना डिस्टेंस, तो आप इसको 16 के साथ इक्वेट कर दें, ये कैंसिल हुआ, सो ए इज 5, ठीक। ये काम हमारा एक्सपांड हो गया। रीजन बिंग वी ट्राई टू डू इट बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लेकिन अगर नॉर्मल वाला पोर्शन आपने किया हुआ है तो आपका ये सारा मेहनत सेव हो जाएगा, आप डायरेक्टली इस स्टेप से बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इट सेज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a,0 मतलब 5,0, द फोकस ऑफ द पैराबोला जो कि है 1,0 and having a center on the axis which is again x axis। तो बच्चा अगर सेंटर x axis पे है और जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है वो भी x axis पे ही है तो क्लियर हो जाता है दिस विल फॉर्म ए डायामीटर, राइट। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर, 3,0 इज द सेंटर एंड रेडियस विल बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायामीटर है तो रेडियस इज 2 यूनिट, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आंसर कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x पूरे में सिर्फ यहीं पे है 9 - 4 5, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज लेट ए बी x, y बिलोंगिंग टू r क्रॉस r, रियल क्रॉस रियल, ओके, x and y are real numbers, satisfying this, b satisfies this, c is a intersection b, दोनों में कॉमन एंड एट द सेम टाइम x इज 0 और y 0 मतलब x या y एक्सिस पे होना चाहिए। देन समेशन ग्राफिकली करेंगे तो इस ग्राफ पे आते हैं, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी से बिगिन कर लें। तो x प्लस वाई मॉड इज 3, x प्लस वाई इज प्लस और माइनस 3, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 कहाँ पे, यहाँ पे, एंड प्लस 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे, माइनस 3 यहाँ पे, एंड वी वांट दिस मॉड ऑफ जो x प्लस वाई है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर आप चेक करें 0,0 के लिए तो ये 0 लेसर देन आ रहा है, तो अगर हमें ग्रेटर चाहिए तो आउटसाइड हियर, ठीक, ये हो गया। अब इसमें भी एक और चीज देख लो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद x एंड y एक्सिस, ताकि क्लैरिटी रहे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3,0, 0,3, दिस इज 0,-3, -3,0। नाउ ये तो हमने याद रखा हुआ ही है, केस ऑफ ए स्क्वायर, राइट। तो डायरेक्टली बनाएंगे, यही इसके वर्टिसेस होंगे, ये हो गया, एंड इंटीरियर टू इट ये। तो बच्चा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कौन सा वो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन पोर्शन क्लियरली बाउंड्री वाला पोर्शन होगा, क्योंकि ये कहता है अंदर, ये कहता है बाहर, वो तो होना नहीं है, तो इक्वलिटी वाला जोन ही होगा। तो जो इंटरसेक्शन है दोनों में दैट इज दिस एंड दिस, एंड नाउ इट सेज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना उसका x या y एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इज टॉकिंग अबाउट दिस 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट इट सेज ये जो भी पॉइंट्स है इस सेट में, मतलब ये 4 पॉइंट्स, इनकी आप x एंड y कोऑर्डिनेट को ऐड करके मॉड लो और उनका सम देम अप, ओके। तो यहाँ पे आ गया 3, x एंड y का सम का मॉड, x एंड y सम का मॉड 3, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिसेस, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। Here 3 cross 3 matrix is such that how do we handle? Immediately matrix A, A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लेस वाइज ले लें ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ये अब इफ दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद दिस इट रिजल्ट्स टू दिस, ओके। हमें सॉल्व भी तो करना है पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो इक्वेशंस बनाते जाते हैं। दिस into this मतलब A12
is equal to 0. Then this with this a22 which is here 0. उसके बाद this with this a32 which is 1. ठीक, ये इंफॉर्मेशन का पता चल गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. this with this is 0. Okay, so we have 4 a11 a12 3a13 is 0. उसी तरह से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, डायरेक्टली लिख लोगे, टाइम एंड एनर्जी दोनों सेव हो जाएगा. एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ a23 which is 1. And then this with this 4a31 and this is a32 3a33 and that is equal to 0. Done. 9 unknowns are there. 9 इक्वेशन इमीडिएटली फ्रेम हो जाएंगे और बहुत इजी टू सॉल्व रहता है. यहाँ आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो a इंटू दिस, आगे बढ़ें, दिस इंटू दिस, सो दैट इज 2a11 हियर. एंड एक और चीज़ ये भी पहले चेक कर लो कि क्या हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमें a23 चाहिए ना बस. सो 23 का प्रेजेंस इसमें कहाँ पे है? 23 का प्रेजेंस यू कैन सी हियर, राइट. दैट मीन जिस इक्वेशन में 23 का प्रेजेंस है उसमें 21 22 23 ये है. ठीक, इसका मतलब सेकेंड रो का इन्वॉल्वमेंट है. तो सेकेंड रो का जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है a22 जो कि है 0. तो ये प्लेस कर देते हैं और यहाँ से आप बस सेकेंड रो वाला ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें ताकि हम a23 को सॉल्व कर लें, बाकियों पे अटेंशन ही ना दें. ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं सीधे सीधे हियर. सो इट इज 2a21 प्लस a22 plus 2a23 that is the second element 0. a22 तो 0 है बेटा and 2 unknown 2 equation. हमें इस टर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, we want to find this. तो इसी को हम करेंगे एलिमिनेट. तो मैं इसे 2 टाइम्स कर देती हूँ, 4 इक्वल टू 0. दोनों को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट माइनस इज इक्वल टू 1. a23 इज -1. ठीक है, नेक्स्ट. On differential equation, x function name is x, independent variable is y, is a solution of it. तो क्लियर है कि dx by dy के फॉर्म में हमें इसे हैंडल करना है. तो स्ट्रेट अवे इस टर्म को हम करेंगे इधर शिफ्ट. सो y cosec x by y is equal to x minus y dx by dy. ठीक, अब अगर हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन में दिखता है तो आप देख लो चाइल्ड फंक्शन होमोजीनियस फॉर्म में x बाई वाई, तो इमीडिएटली आपका अटेंशन जाना चाहिए डेफिनेटली एक होमोजीनियस फॉर्म ही होगा एंड x बाई वाई इज इक्वल टू टी लेते हुए आप आगे बढ़ जाएं. ठीक, तो देखें यहाँ x बाई वाई को अगर हम t लेना चाहते हैं तो पूरे को y से कर दें डिवाइड, ये हो गया 1. अब x बाई वाई को t ले रहे हैं, दैट मीन्स dx by dy को हमें रिप्लेस करना होगा. सो डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट, मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफ्रेंशिएट द सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू y. ये आ गया. अब इस पूरे इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल. ठीक, तो y एंड t में अब डिस्कशन होगा. सो दिस इज t इज इक्वल टू, ये हमारे लिए x बाई वाई दैट इज t माइनस dx बाई dy, ये आ गया y dt बाई dy माइनस टी, ये कैंसिल. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन रह गया. dt इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, कोसेक का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन t dt और इस तरफ लिख लेते हैं dy बाई वाई. माइनस साइन को इधर ही रहने देते हैं. ठीक, अब इंटीग्रेट कर लें लॉग मॉड y इंटीग्रल ऑफ दिस cos t प्लस c. अब x एंड y में रिवर्स कर देते हैं t that we have considered. ये now it says x of 1 is pi by 2, मतलब y की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं ना तो वैल्यू ऑफ x is pi by 2. so this is pi by 2, this is 1, cos pi by 2 is 0, y वैल्यू is 1 तो ये 0, c is 0. इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने हमें बता दिया c का वैल्यू 0 है. तो ये क्या आएगा? ठीक, तो y की जगह पे हमें 2 पुट करना है. दिस इज log 2 is equal to cos x
एंड y दैट वी आर कंसिडरिंग इज 2, ठीक। और हमें वैल्यू फाइंड करना है cos x का फाइंड करना है, ठीक है। x ऑफ 2 इसका मतलब y का वैल्यू 2 है, फॉरगेट इट, cos ऑफ x, एंड यहाँ हमारे पास है cos ऑफ x बाई 2, तो cos x मतलब डबल एंगल, सो cos x वी नो इज 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 which is 2 ln 2 का स्क्वेयर माइनस 1। अब चेक कर लें, टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट, another such question जो जेई एडवांस में भी आया हुआ है, सिमिलर थिंग जेई मेन में भी पहले आया हुआ है। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर आर, x दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, x हमें कैसे मिलेगा, इसका कांस्टेंट इसके x से मल्टीप्लाई हो या इसका x इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, राइट। तो अगर हम इसका कांस्टेंट लेते हैं दैट इज 1 मल्टीप्लाइड विथ x हियर दैट इज माइनस क्यू एक्स, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है। अब इसका x लेते हैं, उसका कोएफिशिएंट p है, और इसका कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि है 1, इट इज कोएफिशिएंट इज 1। दो अननोन में पहला इक्वेशन। सेकंड, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा कैसे, इसका एक्स स्क्वायर इसके कांस्टेंट से, इसका एक्स इसके एक्स से, या इसका कांस्टेंट इसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो अब डायरेक्टली लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट तो 1 है, एंड देन लेट्स टेक इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट का कांस्टेंट। अब इसका x और इसका x, तो ये होगा p, ये होगा माइनस q, इट सेज इट इज माइनस 2, दो अननोन दो इक्वेशन, ये होगा p इंटू पी माइनस 1 बाई 2, 2 से हम पूरे इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हम फ्रैक्शन से डील करना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये सेकेंड डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है, तो p इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, p is 1 plus q, so p minus 1 is q square, and p is 1 plus q, here everything we have converted in terms of q, so q square plus q square, and यहाँ पे है minus 2q square, तो q square तो हो गया पूरी तरह से cancelled, right। then we have q, we have minus q, ये तो हो गया cancel, we have minus 2q is equal to minus 4, value of q is 2, q का वैल्यू है 2, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो p is 3, now it says p square plus q square 9 plus 4, answer is, ठीक। next, it says let the point A divide the line segment joining the points this and this internally in the ratio of r is to 1, r is greater than 0, if O is origin and this is 10, then value of r is what, solving best है। तो थोड़ा सा जहाँ भी सिंप्लीफिकेशन या सॉल्विंग वाला पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो वी हैव p पॉइंट -1 -1 2, और उस काम को भी आप सेव कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर थोड़ा अटेंशन रखते हुए, जहाँ कहीं भी सब्सटीट्यूशन की जरूरत पड़े, यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी, लाइक दैट। ये है ऑरिजिन, r is to 1 रेशियो ऑफ डिवीजन हो रहा है, और इस पॉइंट का नाम दिया गया है आज a, so r is to 1 रेशियो ऑफ डिवीजन दैट वुड बी 5r -1 upon r plus 1, एंड सेम 5r r is to 1, ठीक है, अपॉन r plus 1, 10r plus 2 अपॉन r plus 1, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है कि इस तरह से लेने में ना डॉट प्रोडक्ट ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड सा फील होगा, तो बेटर है कि इस पूरे कोऑर्डिनेट्स में अगर आप देखें तो r बाई आर प्लस 1 एंड 1 बाई आर प्लस 1 उसी को लेके बना है। तो एक काम करते हैं, r बाई आर प्लस 1 को हम कुछ नाम दे देते हैं, k ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम k लेते हैं, k के वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से r को हम इमीडिएटली आंसर कर पाएंगे। तो दिस इज k, और हमें 1 बाई आर प्लस 1 भी चाहिए, सो फॉर दैट r आप कैलकुलेट करते हुए कर सकते हैं या ऐसे कर लें। सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई दिस इज k, सो 1 बाई आर प्लस 1 फॉर अस इज, ठीक। सो r बाई आर प्लस 1 ये हमने k लिया है, और ये, ठीक। तो अब हम पूरे कोऑर्डिनेट्स को, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ k लिख लेते हैं। हमारे पास ये डिनोमिनेटर का प्रेजेंस नहीं होगा, तो दैट कैलकुलेशन वुड बी सिंपलर, ठीक है। तो अब बता दें ये क्या आ जाएगा, 5
r बाई आर प्लस वन मतलब 5k, यहाँ पे सेपरेटली कर लेते हैं, माइनस 1 बाई आर प्लस वन माइनस दिस, so that will be 6k माइनस 1, डन। अब उसी तरह से ये भी 6k माइनस 1 ही है, यहाँ पे दिस इज 10k प्लस 2 बाई आर प्लस 1, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ, जो कि है 8k प्लस 2। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। Here it says OQ dot OA, OQ here dot OA स्ट्रेट अवे लेते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ दिस, सेम थिंग ये बनेगा तो इसे 10 टाइम्स कर देते हैं, एंड देन 10 टाइम्स ऑफ 8k प्लस 2। आप देखो कितना इजीली ये सिंप्लीफाई हो गया, 10 हमने ले लिया कॉमन, 8 प्लस 6 दैट इज 14 प्लस 1। ठीक, अब हम इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, दैट इज 10 14k प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, 1/5, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, सो इट इज OP, so IJK -1 -1 2, एंड हमें लेना है OA, ओके, so 6k -1 6k -1 8k plus 2, so it is I minus 8k minus 2 minus 12k plus 2, ये हुआ कैंसिल एंड वी गेट minus 20k I कैप। ठीक, आगे नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं, दैट इज माइनस जे माइनस 8k माइनस 2 माइनस 12k प्लस 2, ये भी हो गया कैंसिल, माइनस 20k और माइनस साइन के साथ मिलके डन। अब k कैप के साथ आएगा दिस माइनस दिस, स्ट्रेट अवे वो 0 ही है, डन। और हमें इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए जो कि है 400k स्क्वायर प्लस 400k स्क्वायर, दैट इज 800k स्क्वायर। कितना सिंपल सा रह गया। इट सेज दिस इज 10, फाइन, और 5 को हम यहाँ से कर देते हैं सिंप्लीफाई, सो दिस इज 160, फाइन, 10 को भी कर देते हैं कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 14k प्लस 1 माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 भी हुआ कैंसिल, तो k का वैल्यू या तो 0 है या तो k का वैल्यू 14/16 है जो कि है 7/8। ठीक, अब ये जो k हमने कंसीडर किया है वो है r/r प्लस 1, r पॉजिटिव है तो k 0 तो हो नहीं सकता। ठीक, तो 7/8, r/r प्लस 1 7/8 है, आप क्रॉस करके निकाल सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है और वही चीज़ यहाँ पे है तो स्ट्रेट अवे r इज 7। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई द मोमेंट वी टेक दिस, अदरवाइज ना ज़्यादातर बच्चे अगर इस तरह से लिख के करोगे ना यू विल टेंड टू लीव इट। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बेस्ड, I is this, then this value will be what? Okay, ये जो I हम यहाँ से सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे लिमिट में यूज होगा, फाइन। और ये तो देखते हुए ही ओरली भी हम आंसर कर सकते हैं, द मोमेंट यू यूज शिफ्ट प्रॉपर्टी, यहाँ कॉस क्रिएट होगा, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 1 dx आ जाएगा, सो दैट इज π/2, I इज π/4। ठीक, I π/4 है तो ये आ गया π/2, मिक्सचर बेस्ट है तो इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी, इसका नाम हम दे देते हैं I1। ठीक, सो I1 जब से हम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दैट विल बिकम π/2 माइनस एक्स, एंड ये कॉस ये साइन मतलब ये सेम ही रहेगा, यहाँ cos पावर 4 यहाँ sin पावर 4 आ जाएगा, तो मोर ओवर दोनों कंबाइन होकर सेम ही रहेगा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2I1 विल बी 0 to π/2, ये पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ π/2 माइनस एक्स होगा और दूसरे में x होगा, दोनों ऐड होके π/2 रह जाएगा, तो ये है कांस्टेंट, हमने इसे बाहर मूव कर दिया, एंड sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन sin पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। अब इसमें अगर आप फिर से शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखें तो यू आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ हाफ द इंटरवल, तो ये है 0 to π/4, इंटरवल छोटा होता है तो डीलिंग गेट्स सिंपलर। ठीक, ये I1 के फॉर्म में लिख देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं,
डन। अब यहाँ पे साइन एंड कॉस का इवन पावर का प्रेजेंस है, क्योंकि ये सेम ही तो है यहाँ पे, ठीक। तो इवन पावर के लिए आपको क्या बताया था, कॉस ऑफ द हाईएस्ट इवन पावर से आप डिवाइड कर दें। यहाँ कंबाइंड पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो कॉस पावर 4 से आप डिवाइड कर दें। वैसे आप साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं। साइन से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, टी इज इक्वल टू कॉट का। कॉस से डिवाइड करोगे तो टी इज इक्वल टू टैन का। ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में डिस्कस किया हुआ है। तो डिवाइडिंग में कॉस पावर 4, ठीक है, ध्यान देना। कॉस पावर 4 से डिवाइड करोगे, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब रह जाएगा, साइन बाई कॉस टैन बनाएगा, एंड 1 बाई कॉस स्क्वेयर 6 स्क्वेयर एक्स बनाएगा, एंड नीचे टैन पावर 4 प्लस 1 ओवर। अब अगर आप टैन एक्स को टी लेते हैं तो यहाँ टी पावर 4 प्लस 1 आएगा। तो फोर्थ डिग्री को तो हम अवॉइड ही करना चाहेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम ट्राई करेंगे दैट इज टी इज इक्वल टू टैन स्क्वेयर एक्स। देखते हैं क्या हमारे पास डी टी का प्रेजेंस है, ये है, एंड वी हैव इट, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 पहले से ही है, 1/2 आ गया, एंड दिस इज डी टी एंड टी स्क्वेयर प्लस 1, limit for the new variable that is 0 and this is 1. So pi by 4 tan inverse of t limit apply करेंगे, so answer is pi square by 16, डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, it says if the square of the shortest distance between the lines, और लाइंस भी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में गिवन है, कहीं कोई मेहनत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है बच्चा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, खुद कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट, इट सेज द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सैटिस्फाइंग दिस एंड दिस इंफॉर्मेशन। बच्चा जब भी हम जेड को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, वन कार्टेशियन फॉर्म, सेकेंड यूलर फॉर्म। आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी मॉड का वैल्यू गिवन हो या आर्ग्यूमेंट गिवन हो तो ऑलवेज प्रोसीड विथ यूलर्स फॉर्म। तो यहाँ पे हमें मॉड जेड दे दिया गया है, तो विल टेक जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज 1 इंटू ई पावर आई थीटा, ठीक है। बस थीटा को सॉल्व करना है, जितने थीटा हमें मिलेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने सोल्यूशंस जनरेट हो जाएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन पे आ जाए, जेड ई पावर आई थीटा है, जेड कॉन्जुगेट ई पावर माइनस आई थीटा है, जब डिवाइड होगा ई पावर आई थीटा अपॉन ई पावर माइनस आई थीटा तो ई पावर 2 आई थीटा, ये ई पावर माइनस आई थीटा, ये ई पावर आई थीटा, डिवाइड हुआ ई पावर माइनस, राइट, एंड ये है कॉस 2 थीटा। वैसे डायरेक्टली बता दो, ई पावर आई अल्फा प्लस ई पावर माइनस आई अल्फा इज 2 कॉस अल्फा, तो डायरेक्टली 2 कॉस 2 थीटा। इसका मॉड 1 है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मॉड है तो कॉस 2 थीटा फॉर अस, राइट। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेके चले, जरूरी नहीं है, हमें नंबर ही तो काउंट करना है। तो लेट्स टेक थीटा टू बी एनी आर्ग्यूमेंट, मतलब थीटा जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो 0 से 2 पाई के इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। तो जो 2 थीटा होगा वो 0 से 4 पाई में होना चाहिए। अब आप बताएं कि कॉस, अगर मैं इसे अल्फा कंसीडर करूँ तो इसके कितने सोल्यूशंस मिलेंगे वेयर अल्फा बिलोंग्स टू दिस, मतलब टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। और बच्चा कॉस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ, चारों क्वाड्रेंट में एक एक सोल्यूशन मिलेगा, वैल्यू पे जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ काउंट ही करना है। चारों क्वाड्रेंट में एक एक सोल्यूशन, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन में 4 सोल्यूशन, सेकेंड रिवॉल्यूशन में अनदर 4 सोल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज a board has 16 squares as shown in the figure. Out of the 16 squares, 2 squares are chosen at random. The probability that they have no side in common, they do not have any side in common. So we will take total number of possibility of selection कितने होंगे, उसमें से 2 such squares which have a side in common, ठीक है। वो केस हम ले लेंगे। So have a side in common, स्ट्रेट अवे प्रोबेबिलिटी पे ही चलते हैं। तो टोटल इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए साइड हैविंग कॉमन, ठीक। तो 2 स्मॉल स्क्वायर हमें लेना है, एक साइड कॉमन, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी जब आप एडजेसेंट पेयर लेंगे। तो अगर हम एक रो की बात करें तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी एंड 4 रो में है। तो अगर हम हॉरिजेंटली 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के सिलेक्शन की बात करते हैं तो 3 into 4 12 पॉसिबिलिटी, और अगर वर्टिकली लेंगे तो 12, मतलब टोटल 24 possibilities are there. Out of a total of we have 16, ठीक, this is 16 into 15 by 2,
ये हुआ सिंप्लीफाई 1 माइनस 1/5 विच इज, ठीक, सिंपल ही है ना। नेक्स्ट इट सेज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड देखते हुए ही पता चल रहा है, cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटी वी नो cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा, इट इज़ 1/4 cos 3 थीटा, राइट। तो इन तीन टर्म को तो हम कंबाइन करते हुए लिख सकते हैं 1/4 cos 3x, तो 4 हम फर्दर कैंसिल कर देते हैं, तो ये हुआ cos 3x। अब sin 3x एंड 2 टाइम्स ऑफ cos 3x sin 6x बनाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 2 sin 6x cos 6x एंड 2 sin 6x into cos 6x विल फॉर्म sin 12x। सो ओवरऑल सिंपल सा ये रह गया। अब इसका रेंज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये -1 से 1 में है, तो ये आ जाएगा 5 to 7, ये हुआ अल्फा बीटा। देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द लाइन, तो पॉइंट है 5,7, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो 5 into 3 7 into 4 प्लस 12 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ये दोनों कंबाइन हुए 40 सो इट इज 55/5 सो इट इज, ठीक है। नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस, कितनी बार हम इन तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमने वन शॉट के साथ भी किया हुआ है, PYQs में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैंने दो मेथड से आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आप देखो व्हाट इज सेज इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग दिस लाइन, तो एक तरीका तो आप यही करेंगे कि इस लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट का नॉर्मल डिस्टेंस नहीं, मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। तो ये एज ए वेक्टर अगर मैं कंसिडर करती हूँ, दिस इज आई कैप, मैं सिर्फ कंपोनेंट से लिख लेती हूँ, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्शन को साइन लेते हुए हम करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, दूसरा जो ज़्यादातर बच्चों को सिंपल लगता है वो ये है कि इस लाइन का आप इक्वेशन लिख लेंगे, दैट इज x -1/1, इसे इस तरह से लिख लो, बेटर रहेगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक। सो इट इज y -4/2 z/3, इस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं दैट इज k + 1 2k + 4 3k, we want this point to be part of this, तो पुट कर देते हैं k + 1 -2 k -1 and 2k + 4, so 2k -2/3 is equal to 3k -3/4। एक ही अननोन है, वैसे तो आप किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगा क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे क्वेश्चन ने कहा है, राइट। वैसे अगर आपको चेक करना हो कि वो इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो एक से सॉल्व करें, दूसरे से सॉल्व करें, अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के मिल रहा है इसका मतलब दिया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ हमने क्रॉस किया 4k -4 3k -3, सो k इज 1, ठीक है। और इस k के लिए आप क्विकली अपने लिए वेरीफाई कर लो, k इज 1, देन दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0, तो इक्वालिटी तो आ ही गई, ठीक। वैल्यू ऑफ k इज 1, तो हमें ये पॉइंट मिल गया, दिस इज 2 6 3। अब डिस्टेंस कंसिडर कर लो, सो दिस इज 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट ऑन लिमिट बेटा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो इस पार्ट पे तो जो हाईएस्ट इन्फिनिटी है, सबसे बड़ा है, वो x स्क्वायर की वजह से उसका कोएफिशिएंट का रेशियो, तो इस पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो ये इन्फिनिटी के पावर में इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पावर में इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में और पावर रिलेटेड डीलिंग हो रहा है। तो एक काम करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पावर x/2 है और ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब 3x + 2 पावर हाफ होल पावर x, तो ये भी है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं और फिर आगे देखें तो बेटर रहेगा।
अब x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये 1 है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और उसे हमें हैंडल करना आता ही है, तो इसे हम सेपरेटली कर लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म e पावर दिस -1 f of x -1 इंटू g of x, x is approaching infinity, ये हमें देगा 3x - 1 here 3x plus 2 x by 2, ये हुआ कैंसिल, सो वी गेट -3/2 x बाई, इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 3 हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, सो वी गेट -1/2, तो e के पावर में -1/2, ठीक। चेक कर लेते हैं, 2/3 रूट e, ओके, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज x ये है एंड रिलेशन r ऑन x आज, ये जो रिलेशन है डिफाइंड इस तरह से है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू दिस प्रोवाइडेड b1 इज b2, मतलब बस ये सेम होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है या गलत है, क्या r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखें क्या x, y इज रिलेटेड टू x, y, और रिलेटेड कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल हो, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर x1, y1 रिलेटेड है x2, y2 के साथ, वुड इट मीन दैट x2, y2 इज रिलेटेड टू x1, y1, तो ये तो तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो, और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी ट्रू होगा, ठीक। तो ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, उसके लिए if x1, y1 is related to x2, y2 and x2, y2 is related to x3, y3, तो क्या ये दोनों रिलेटेड होंगे, मतलब y1 इज इक्वल टू y3 आएगा क्या। अब ये रिलेटेड है तो y1 इज y2, ये रिलेटेड है तो y2 इज y3, तो y1 इज इक्वल टू y3 हुआ ना, तो दिस इज ट्रांजिटिव एज वेल। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल थ्री, सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 को देखें, फॉर सम a, b बिलोंगिंग टू x, मतलब इस टाइप का है, एंड सेट s as x, y बिलोंगिंग टू x, वेयर x, y इज रिलेटेड टू a, b, अगर ये रिलेटेड है तो y मस्ट बी इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b, उस पे लाई करता हुआ, मतलब उसे सेटिस्फाई करने वाले जो भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। बच्चा ये पॉइंट जो कुछ भी आएगा ना उसमें x तो वेरी करेगा बट y विल बी ए कांस्टेंट, y इज इक्वल टू b, तो जब y कांस्टेंट होता है तो दैट इज गोइंग टू वेरी ऑन ए लाइन, राइट। सो y इज इक्वल टू b रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू, नो, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, integration. This is this where c is constant of integration. If a times of g of pi by 2 plus g dash pi by 2 is this, देखो g dash चाहिए तो बस इसे डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो g dash तो हमें क्लियर है, x क्यूब sin x है, तो g dash of pi by 2 is x की जगह पे pi by 2 पुट कर दें, ये हो गया 1, ठीक। तो इसका वैल्यू तो हमारे पास स्ट्रेट अवे है। g ऑफ पाई बाई 2 चाहिए तो हमें करना होगा इसे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाना है, सो 3x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन माइनस cos x, जैसे भी आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं ना बाय पार्ट्स प्रोसेस को, आप उसी तरह से करें, दिस इज cos x एंड 0 sin x, सो प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमें x की जगह पे पाई बाई 2 पुट भी करना है तो साथ में करते हैं, एक्सेस पाई बाई 2 इसमें पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, एक्सेस पाई बाई 2 दो माइनस से वो है प्लस, सो 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 और ये है 1, फाइन, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -6 साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, ये है, ठीक। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, सो वी हैव 8 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, ओके। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज 6 पाई स्क्वायर, 8 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 8 से मल्टीप्लाई हुआ। अब कंपेयर कर लें, अल्फा इज 1, बीटा इज 6, गामा
इज -48. क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस मतलब 7 + 48 which is, ठीक है ना. नेक्स्ट द वेरियंस ऑफ द नंबर्स दिस. बच्चा नंबर्स को एक बार ध्यान दें. हियर डिफरेंस कितना है 21 - 8 13. यहाँ डिफरेंस कितना है 13 है मतलब AP के टर्म से है ना. तो इसका जनरल टर्म लिख लो. क्या है ये A + n-1. ये सब ट्रिक्स मैंने आपको बताया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के साथ. ठीक है. A + n-1 R ले लेते हैं उसे R - 1 इंटू विच इज 13R माइनस यहाँ -13 है +5 है. डन. तो इस तरह के टर्म्स में R इज वेरिंग फ्रॉम कहाँ तक जा रहा है. तो इस जनरल टर्म को 320 के साथ इक्वेट कर दो. आपके R के सारे पॉसिबिलिटीज का आपको पता चल जाएगा. तो ये इधर शिफ्ट हुआ 325. 13 से हम इसे करते हैं डिवाइड. सो दिस कम्स आउट टू बी 13 2 सो 26 है ना. तो 65 विच इज R का वैल्यू 1 से 25 तक जा रहा है. अब क्वेश्चन ने हमें कहा है वेरिएंस और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है. जब कभी भी हम कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे वेरिएंस इफेक्ट नहीं होता. तो हम इस तरह के टर्म्स का वेरिएंस लें या 13R का वेरिएंस ले कोई फर्क नहीं है. ठीक है. अब 13R है 13 हम सिंपल फॉर्म में ही लेना चाहेंगे. हम R का वेरिएंस निकालना चाहेंगे. ठीक है. तो 13 ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है लेट्स टेक xi और आप इसे a टाइम्स करते हैं तो इसका जब हम वेरिएंस लेते हैं दैट बिकम्स a² टाइम्स वेरिएंस ऑफ xi. सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में. ठीक है. तो उसी का हम यूज लेंगे. हमें ये क्लियर है कि जो वेरिएंस r के लिए आएगा उसको हमें 13 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए आंसर देना है. दैट्स इट. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. r के लिए वेरिएंस लेना है 1 से 25 तक है. सो दैट इज r² समेशन अपॉन माइनस r समेशन. ठीक. सो r² मतलब 1² 2² सो ऑन टिल 25 का स्क्वायर n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बाई 6 इंटू 25. ठीक. यहाँ पे आ जाते हैं 25 इंटू 26 बाई 2. तो 25 हो गया कैंसिल. 13 का स्क्वायर ये रह गया. ठीक. अब ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है. यहाँ पे देखें हमने 2 से डिवाइड कर दिया. सो दिस कम्स आउट टू बी 13. यहाँ 3 है 3 यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं. सो दैट कम्स आउट टू बी 17. 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं बेटा तो 17 - 13 दैट इज 4. सिंपल. 13 इंटू 4 इज 52. ठीक. तो R वाले टर्म का जो वेरिएंस आया है वो 52 है. तो हमारा आंसर होगा 52 इंटू 13 का स्क्वायर 169. मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज 13 3 एंड दिस इज 3 4 8. सो 8 8. ठीक है बेटा. नेक्स्ट. और ये जो बहुत से बच्चों का माइंडसेट होता है ना स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन लेंथी होते हैं ये उनके लिए है. प्रॉपरली करेंगे ना तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस लेंथी नहीं होते. द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो सो दैट आइदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर. जब भी और का डिस्कशन होता है ना तो आप यूनियन की तरह उसे ले. तो हमें चाहिए ये एक केस है. अगर मैं इसे A कंसिडर करूं इसे B तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है राइट. और ये दोनों डिसजॉइंट है मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी क्योंकि एक कह रहा है ऑल द बॉयज सिट टुगेदर सारे के सारे बॉयज साथ में. दूसरा कह रहा है नो 2 बॉयज आर टुगेदर. तो दोनों में इंटरसेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं. तो इस केस में जो यूनियन है जो और है वो एक्सक्लूसिव और है ना. तो यूनियन वुड बी स्ट्रेट अवे एडिशन. नाउ टेल मी ऑल द बॉयज सिट टुगेदर. तो 5 बॉयज को हमने अरेंज किया. हमने उन्हें टाई कर दिया 1 ऑब्जेक्ट एंड 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट. एंड नाउ नो 2 बॉयज सिट टुगेदर. इन सच केसेस हम गर्ल्स को अरेंज करते हैं. गर्ल्स की सराउंडिंग में 5 प्लेसेस आर क्रिएटेड. एट दोज 5 प्लेसेस 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड. इसमें से हम 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ रह जाएगा 5 यहाँ रह जाएगा 1 जो कि है 6. ये है 126 और ये है 24. मल्टीप्लाई कर लेते हैं
24 इंटू 6 जो कि है 144 एंड 120, राइट, मल्टीप्लाई करते हुए आंसर दे दें, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज द सेंटर ऑफ सर्कल C ऑफ रेडियस 5, रेडियस पता है, सेंटर पता है, ये एक राइटवर्ड पैराबोला है, x+4, वर्टेक्स इसका -4,0 पे है, A1 है, तो फोकस इज -3,0, सो सर्कल का इक्वेशन है x+3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आगे, if the values of lambda for which C passes through the point of intersection of the lines this and this, तो इन दोनों का point of intersection ये यहाँ पुट करेंगे, so 3 lambda x is equal to 4, x is 4/3 lambda plus 1 और y is 3 times of this, so it is 12 अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 4/3 lambda plus 1 plus 3 whole square and this is 144, 3 lambda plus 1 का whole square is equal to 25, ठीक। अब इसके आगे का काम तो आप खुद कर लेंगे, 3 lambda ये 3 टाइम्स कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं, so that becomes 9 lambda plus 3 plus 4 7 का whole square plus 144 is equal to 25, 3 lambda plus 1 का whole square। आगे का काम सिंपल सा ही रह गया, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, दो रूट्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, स्मॉलर लैम्डा 1 लार्जर इज लैम्डा 2, यहाँ पे पुट करते हुए कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर 10th and 11th टर्म्स ऑफ एन AP व्हिच कॉमन डिफरेंस इज गिवन, मतलब AP पे वर्क करने के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन ने दे दिया, बस हमें फर्स्ट टर्म ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जरूर देगा, इफ सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 88, सो 11/2 2A प्लस n-1 इंटू D, क्वेश्चन ने कहा ये 88 है, ये कैंसिल हुआ 8, 2 हमने क्रॉस कर दिया 16, ये 5, so 2A is 16 minus 15, so A is 1/2 and D is 3/2 in this question, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे P and Q का वैल्यू पूछ रहे हैं and we know sum of roots is sum of 10th and 11th terms, sum of 10th and 11th terms, ठीक है, सेपरेटली लिख ही लेते हैं, A10 is A plus 9 times of D, so 27/2, which is 28/2, it is 14, and A11 is, इसी में आप D ऐड कर दो, that's it है ना, 3/2 आप ऐड कर दो, that comes out to 15.5, 31/2, ठीक। and sum of roots is, add this to 14, 31/2, value of P हमें यहीं से मिल गया, which is 3 times हमने किया 42, 3 times हमने किया, so it is 93/2, ठीक है। P का वैल्यू हमें मिल गया, Q पे चलते हैं, which is Q/3, product of roots, product of these two values, so 14, 31/2, 2 हुआ कैंसिल, ये हुआ 7, ठीक है। Q का वैल्यू हमें चाहिए, तो Q हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इज 7 इंटू 3, या तो 3 को हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 93। अब जो हमें कैलकुलेट करना है उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, इन बिटवीन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Q minus 2P, so 7 into 93 minus 2 times of P, P that we have is here, 2 times हम इसे कर रहे हैं तो 84, 2 times कर रहे हैं, so it is, ये दोनों कंबाइन हुए तो 6 times of 93 minus 84, I'll prefer instead of multiplying 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह जाता है 1, 4, 14 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड देन 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 79। अब 6 टाइम्स किया, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ये है, ओके, न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट, Pn इज दिस एंड हमारे पास P3, P4, P5, इसके हेल्प से A एंड B में एक इक्वेशन मिलेगा,
एंड देन P4, P5, P6 की हेल्प से दूसरा A एंड B दोनों के वैल्यूज आ जाएंगे, विल बी एबल टू सॉल्व फॉर. ठीक है, सो वी हैव Pn प्लस 2 माइनस A Pn प्लस 1 माइनस B Pn इज इक्वल टू 0. न्यूटन फॉर्मूला को मैंने लिखा है इसके हेल्प से यूजिंग दैट. ठीक है, अब बता दें वी हैव P3, P4, P5. तो P5 माइनस A P4 माइनस B P3 इज इक्वल टू 0 एंड P6 इनके हेल्प से दैट इज P6 A P5 माइनस B P4 इज इक्वल टू 0. दोनों से इक्वेशन फ्रेम कर लो. हियर P5 11 रूट 7 I माइनस A P4 सो 3 रूट 7 I, दो माइनस से ये हो गया प्लस, देन प्लस 5 रूट 7 I B. रूट 7 I को तो हम डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव 11 3A 5B. वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू अननोन्स. ठीक, आगे बढ़ जाएं. यहाँ पे P6 45 रूट 7 I, देन माइनस हियर 11 रूट 7 I A एंड देन माइनस माइनस प्लस 3 रूट 7 I B. रूट 7 I से हमने कर दिया डिवाइड, तो वी हैव 45 11A 3B. ठीक, दो अननोन, दो इक्वेशन, A एंड B के वैल्यूज तो हमें चाहिए ताकि हम इसे कैलकुलेट कर पाएँ. ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से. फॉर दैट 3A प्लस 5B प्लस 11 is 0 and the second equation is 11A minus 3B minus 45 is equal to 0. जैसे आपको सॉल्व करना है आप कर लें. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रही हूँ. तो A बाई दिस इंटू दिस जो कि एंड देन प्लस 33 इज इक्वल टू B अपॉन 121 प्लस दिस इंटू 3 that will form 135 and 1 is equal to this into this which is minus 9 minus 55. ये हमें देता है minus 64. यहाँ पे देख लेते हैं this is 6 5 2 okay and यहाँ पे ये आ जाएगा minus 2 9 1. डन. अगर आप देखें तो क्या ये तीनों ही 64 से डिविजिबल है? डिविजिबल है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 64 इसको अगर हम 4 टाइम्स करते हैं ये आता है, इसका 3 टाइम्स ये आता है. ठीक है, तो 64 ये हुआ बेटा 4 टाइम्स और ये है 3 टाइम्स. सो वी हैव A बाई माइनस 3 इज इक्वल टू B बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1. सो वैल्यू ऑफ A इज 3 एंड वैल्यू ऑफ B इज माइनस 4. ठीक है ना. अब हमें ये चाहिए, तो बच्चा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या है? A है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? माइनस B है ना. सो इट इज़ 4. सो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर विल बी व्हाट? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा है ना. सो 9 माइनस 8 इट इज़ 1. सो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वेयर करेंगे तो हमें ये मिलेगा. ठीक है, एंड ये वैल्यू है 1 और ये है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर. ठीक, इट इज़ 16. तो माइनस 32 है और प्लस 1 है, माइनस 31 हुआ ये. एंड क्वेश्चन सेज मॉड वैल्यू ऑफ इट, आंसर इज 31. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है अगर हमने न्यूटन्स फार्मूला का एक्सपोजर लिया हुआ है वो डेफिनेटली लिया हुआ ही होगा, क्योंकि थ्योरी के साथ तो हम कवर करते ही करते हैं और PYQs भी अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो कई ओकेजन में न्यूटन फार्मूला के बेस्ट क्वेश्चन तो है ही. ठीक है, अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमसे छूट जाए. ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा.